ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں۔ خبر دیں آپ کو صوبائی دارالحکومت میں سورج کی کرنوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل یہ صورتحال اگر ہم بات کریں صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی، تو موسم جو ہے اس میں قدر خوشگواری کا احساس نمودار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر بھی شہر لاہور میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پہلے اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی اور موسم کی، تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 11، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو دوپہر کے اوقات تک 26 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے، یعنی کہ رات کے اوقات تک جو ہے وہ درجہ حرارت 11 ڈگری تک نیچے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ صبح کے اوقات میں بھی جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے ماڈریٹ رہتا ہے، لیکن دوپہر کے اوقات میں جو ہی سورج نکلتا ہے صبح 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد، تو موسم کے اندر پراپر ایک گرمی محسوس کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ دوپہر کے اوقات میں پراپر ایک جو ہے وہ ماڈریٹ موسم جو ہے محسوس کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ہوا میں نمی کے تناسب کی، تو 81% جو ہے نمی کا تناسب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کہ ہوا چلنے کی جو رفتار ہے وہ 3 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر ضرور جو ہے وہ ہوش ربا اضافہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ خطرناک حد تک اضافہ ہے۔ اوسط شرح جو ہے وہ 319 ریکارڈ کی گئی، اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے، یعنی کہ صوبائی دارالحکومت لاہور صفحے اول پر بھی موجود ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کی مد میں۔ تو کوشش کریں کہ ماسک استعمال یقینی بنائیں، بائک پہ ٹریول کرتے وقت چشمے کا استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں، تاکہ جو منفی اثرات ہیں اس موسم کے اسے ترجیحی بنیادوں پر خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے مبین، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مبین آپ کا۔ شہر میں گراں فروشی عروج پر ہے اور عوام سستی روزمرہ اشیاء کی منتظر ہے۔ مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 475 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 250 روپے مقرر ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7380 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقصنامے جاری کیے گئے جس میں برائلر اور انڈوں کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، تو آج برائلر 7 روپے فی کلو تک اس کی قیمت میں کمی کی گئی ہے۔ سرکاری ریٹ میں برائلر گوشت کی قیمت 475 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے وہ اب بھی 530 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 5 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 300 روپے، ہول سیل زندہ برائلر 314، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 327 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اور انڈوں کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور سرکاری ریٹ میں انڈوں کی قیمت 250 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7380 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں کمی کے باوجود قوت خرید میں برائلر گوشت نہیں آ سکا ہے، اور جو صافی برائلر گوشت ہے وہ اب بھی جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے میری ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے۔ ہم نے 10,350 بچوں کی جانیں بچائی ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں کسی کو اچھا علاج نہیں ملتا، ہم سب کی ناکامی ہے۔ عوامی شکایات کی وجہ سے سخت فیصلے کر رہی ہوں۔ ساری ایمرجنسیز کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا۔ لاہور میں آئندہ ماہ 1000 بیڈز کے چلڈرن اسپتال کی تعمیر شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہسپتال کے ایم ایس اور سی او سے خطاب میں کہنا تھا کہ عوام کو معیاری علاج کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ ہیلتھ کا بجٹ بڑھا کر 630 ارب روپے کر دیا۔ ڈی ایچ کیوز میں بہتر سہولیات کے لیے 100 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں۔ مجبوری اور تکلیف میں لوگ سرکاری ہسپتال میں آتے ہیں، کسی کو اچھا علاج نہیں ملتا تو ہم سب کی ناکامی ہے۔ ہسپتالوں میں ادویات اور انسولین چوری کر لی جاتی ہیں۔ غریب عوام کا پیسہ کھانے نہیں دوں گی۔ ڈاکٹرز دوران ڈیوٹی موبائل استعمال نہیں کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ عوامی شکایات کی وجہ سے سخت فیصلے کر رہی ہوں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، خدا نخواستہ، تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوائیاں ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن مریضوں کو یہ کیونکہ باہر ساز باز کی ہوتی ہے فارمیسیز کے ساتھ یا لیبز کے ساتھ، تو ان کو پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور فلاں فارمیسی سے جو ہے وہ دوائی خریدو، یا باہر جاؤ اور فلاں
जो लैब है वहाँ से अपने टेस्ट करा के लाओ। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बच्चों के दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बीमार बच्चों की हार्ट सर्जरीज के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए। किसी बच्चे की जान अब वेटिंग लिस्ट पर होने की वजह से नहीं जाएगी। जिन बीमारियों को इलाज अस्पताल बनाया जाएगा, आइंदा बाद लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज को सेफ सिटी के साथ लिंक कर दिया। तो मुझे एक लिस्ट थमा दी गई जिसमें ये लिखा था कि ये 15,000 छोटे बच्चों की लिस्ट है जो अपनी दिल की सर्जरी के लिए या इंटरवेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, और उसमें जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज, इन्फेंट से लेकर 15, 16, 17 साल तक के बच्चों की लिस्ट थी। और मुझे ये भी पता चला कि उस लिस्ट में बारी का इंतजार करते करते बहुत सारे बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, बहुत सारी माँओं की गोदें उजड़ गई। उस दिन मैंने तहैया कर लिया कि ये मैं किसी बच्चे की अब जान वेटिंग लिस्ट पे होने की वजह से नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलकीन की कि डॉक्टर इंसानी जिंदगियां बचाने को अपना मिशन बनाए। पंजाब में सेहत के शोबे में बेहतरीन सहूलियात से इनकलाब पैदा करेंगे। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल और रिटेंशन के लिए जामे पॉलिसी। सूबाई काबीना ने मोटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और पंजाब के तमाम महकमों और फील्ड फॉर्मेशंस पर नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू होगी। SNGAD के तहत गाड़ियों की तैनाती और इस्तेमाल को रेगुलेट करने का फैसला किया गया है। अफसरान के इस्तेकाक के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल की हद मुकर्रर, प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए ट्रांसपोर्ट की फराहमी को स्टैंडर्डाइज करने का फैसला भी किया गया है। VVIPs और गैर मुल्की वफूद के लिए गाड़ियों की फराहमी का नया फ्रेमवर्क फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी ड्राफ्ट पॉलिसी की तौसीक़ कर दी है। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में लागत मौसर निज़ाम लाने का हदफ तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और मुतल्लिका महकमों के लिए यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। सरकारी मुलाजमीन के एहतसाब और महकमा जाती कार्रवाई के तरीक़ाकार से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। मुलाजमीन की कारकर्दगी, नज़्म ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 हतमी तौसीक़ के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया गया है। बिल के तहत रिटायर्ड मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली के गुज़श्ता इजलास में मंजूर होने वाले मुलाजमीन कारकर्दगी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 के तहत मुलाजमीन कारकर्दगी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और एहतसाब एक्ट 2006 में अहम तरामीम की जाएंगी। बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया गया है। तरमीमी बिल के मुताबिक रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई 2 साल के अंदर मुकम्मल करना लाजिम होगी। बिल में वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी खास वजह की बिना पर 2 साल में कार्रवाई मुकम्मल ना हो सके तो मुनासिब वजूहात की बुनियाद पर मुद्दत में तोसी दी जाएगी। कानून में वक्त का तयन अदालती और महकमा जाती केसेस को मुकर्ररा मुद्दत में निपटाने के लिए जरूरी करार दिया गया है। तरमीम के जरिए सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई से मुतल्लिक अबहाम दूर करते हुए महकमा जाती इंक्वायरी के दायरेकार की वाज़ेह तशरीह कर दी गई है। इसी तरह सरकारी मुलाजिमीन के एहतसाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ शिकों को मजीद वाज़ेह और मौसर बनाया गया है। बिल के तहत सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई के तरीक़ाकार में पाए जाने वाले कानूनी अबहाम खत्म होंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा MPA ज़ईम कादरी की नमाज जनाजा लॉरेंस रोड पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर इत्तलात अता तारिड़, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की है। ज़ईम कादरी जुम्मा के रोज़ आर्ज़ा कल्ब के बाइस डिफेंस के निजी अस्पताल में इंतकाल करके थे। उनकी नमाज जनाजा रिफत हुसैन कादरी ने पढ़ाई, जबकि तदफीन मयानी साहब कब्रिस्तान में की गई है। नमाज जनाजा में फवाद चौधरी, जावेद हाशमी, सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजा रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मोहम्मद इकबाल, हाफिज़ नुमान और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। सैयद ज़ईम कादरी तवील अरसे तक सियासत में सरगर्म रहे। वो इन दिनों अवाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से काम कर रहे थे। सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में घिया कद्दू 160, मटर 60, गाजर 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अनार 800 से 550, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है और मार्केट में घिया कद्दू 160, मटर 60, गाजर 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अनार 800 से 550, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में घिया कद्दू 160, मटर 60, गाजर 50 रुपये फ़ी किलो में
फरोख्त की जा रही है। अनार 800 से 550, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं महंगाई माफिया के राज के बारे में। मार्केट में घिया कद्दू 160, मटर 60, गाजर 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अनार 800 से 550, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी नफरनामे जारी किए गए हैं, तो सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो रेट लिस्ट में सब्जियां जो है वो मुस्तहकम है, ताहम मार्केट में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। प्याज 60 रुपए फ़ी किलो सरकारी रेट लिस्ट में दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 80 से 90 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 90 के बरक्स 120 रुपए, लहसुन 530 के बरक्स 680 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत 300 रुपए है, लेकिन इसके बरक्स मार्केट में 450 से 460 रुपए फ़ी किलो तक अदरक की फरोख्त की जा रही है। लीमू की कीमत 65 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में लीमू दुगने दामों 120 से 130 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो साग 50 रुपए मुकर्रर किया गया है, मार्केट में साग 70 से 80 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू 22 के बरक्स 40 रुपए फ़ी किलो तक और पालक 30 के बरक्स 60 रुपए फ़ी किलो तक बेची जा रही है। बंद गोभी 50 रुपए मुकर्रर की गई है, इसके बरक्स मार्केट में 80 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है और फूल गोभी 40 के बरक्स 70 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की जो रेट लिस्ट जारी की गई उसमें तमाम फलों की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, जिसमें सेब, काला कोल्हू पहाड़ी 420 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 550 से 560 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सेब, काला कोल्हू मैदानी 275 रुपए सरकारी नफरनामे में, मार्केट में 350 से 380 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 230 के बरक्स 250 से 260 रुपए दर्जन तक बेचा जा रहा है। अमरूद 145 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में, इसके बरक्स मार्केट में 180 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और अब खजूर के हवाले से बात की जाए तो खजूर असील की जो सरकारी रेट लिस्ट में कीमत है वो 410 रुपए है, ताहम यही खजूर मार्केट में 550 से 560 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है और खजूर ईरानी 495 के बरक्स 640 से 650 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस की समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दरख्तों को काटने वाले मुलजिमों की जमानत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने दरख्तों की पॉलिसी बनाने से मुतल्लिक रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब करते हुए एडवोकेट जनरल को पेश होने का। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन सैयद कमाल हैदर ने बताया कि जुडिशल वाटर कमीशन की सरबराही में इजलास हुआ, जहां दरख्तों की कटाई के हवाले से कहा गया कि कोई भी ऐसा फैसला किया जाए तो कमीशन से मुशावरत की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने PHA के वकील हारिस अजमत के ताखीर से पेश होने पर इजहार नाराजगी किया और कहा कि अगर बैरिस्टर हारिस पेश नहीं हो। यूनिवर्सिटी ने जवाब जमा कराते हुए बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के शेख जायद सेंटर से 60 बड़े दरख्त काटे गए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी गई है। यूनिवर्सिटी में 500 दरख्त लगा चुके, जबकि 1 लाख नए दरख्त लगाने का मंसूबा है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी तारीखी इदारा है, वहाँ मियावाकी तर्ज पर जंगल लगाया जाए। PHA के वकील ने बताया कि दरख्तों की कटाई पर सजा बिल्कुल ना होने के बराबर है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, जब तक इनकी जमानतें होती रहेंगी दरख्तों की कटाई नहीं रुकेगी। एडवोकेट जनरल से कहा जाए कि कानून में तरमीम करके नाकाबिले जमानत दफात शामिल की जाएं। अदालत ने करार दिया कि ये कार्रवाई PHA के खिलाफ नहीं बल्कि हम ये आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। अदालत ने 16 फरवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सोलर नेट मीटरिंग की नेपरा और हुकूमती पॉलिसी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने खुद दरख्वास्त गुजार की फौरी हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत नेपरा और लेस्को से जवाब तलब कर लिया। सोलर नेट मीटरिंग की नेपरा और हुकूमती पॉलिसी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत, नेपरा और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने यूनिट के बदले यूनिट के वादे को तोड़ दिया है। नई पॉलिसी से सोलर सिस्टम में सरमायाकारी करने वाले शहरियों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। नेपरा का नया कानून जायदाद के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत पॉलिसी का अलदम करार दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तनाई जारी करे। अदालत ने
फौरी हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि दूसरे फरीक को सुने बगैर ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अदालत ने वफाक समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। शहर में आती ज़िंदगी के बढ़ते वाक़यात पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। कसीरुल मंजिला इमारतों के बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी के लिए सख्त शराइत नाफिज कर दी गई हैं। रेस्क्यू 1122 की फायर सेफ्टी क्लियरेंस के बगैर किसी मल्टी स्टोरी कमर्शियल इमारत को अब इजाज़त नहीं मिलेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर की बुलंदबाला इमारतों में आग लगने के पे दर पे वाक़यात। हुकूमत ने बिल्डिंग सेफ्टी के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियों का फैसला कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर डायरेक्टोरेट ने बिल्डिंग प्लानिंग्स की जांच पड़ताल और मंजूरी के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। एहकाम के तहत अब किसी भी मल्टी स्टोरी कमर्शियल इमारत के नक्शे को हतमी मंजूरी देने से कबल फायर सेफ्टी वेरिफिकेशन लाजमी करार दे दी गई है। नए फैसले के मुताबिक कमर्शियल हाई राइज मंसूबों के तमाम बिल्डिंग प्लान्स रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज को साल किए जाएंगे। मुतल्लिका इदारे के एनओसी या क्लियरेंस के बगैर किसी भी नक्शे की मंजूरी नहीं होगी। बेसमेंट डिजाइन के हवाले से भी अहम और वाज़ेह शराइत मुतारिफ। बेसमेंट तक रसाई के लिए एंट्री और एग्जिट रैंप्स के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रंट साइड से मुश्तरका या अलहदा रैंप की इजाजत होगी, जबकि ऑप्शन के तहत फ्रंट से एंट्री और रियर या साइड से एग्जिट दी जा सकेगी। बेसमेंट मुकम्मल तौर पर रियर या साइड स्पेस में हो तो एंट्री और एग्जिट के लिए अलहदा रैंप्स लाजिम होंगे। हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि मैकेनिकल लिफ्ट्स को बेसमेंट तक रसाई के लिए बुनियादी जरिया नहीं बनाया जा सकेगा। लिफ्ट सिर्फ इजाफी सहूलत के तौर पर काबिल कबूल होगी, जबकि लाजमी रैंप की मौजूदगी हर सूरत में जरूरी करार दी गई है। इमरजेंसी इनखला के निजाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। हर 100 फीट के फासले पर इमरजेंसी सीढ़ियों की फराहमी लाजमी होगी। ये स्टेयर केसेस प्लाट के खुले हिस्से में तामीर किए जाएंगे और इन्हें प्लाट के वस्त में बनाने की इजाजत नहीं होगी। तमाम इमरजेंसी सीढ़ियां हवादार और महफूज अखराज की सहूलत फराहम करने वाली होनी चाहिए। जराये के मुताबिक ये इकदाम मौसर अंदाज में नाफिज हो गए तो न सिर्फ बुलंद इमारतों में आग से निपटने की सलाहियत बेहतर होगी, बल्कि शहरियों को महफूज इनखला के अमली मौके भी मैसर आएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मुल्क में बिजली की पैदावार के अंधाधुंध मुआहिदों का बोझ आवाम पर पड़ने लगा। कभी ना बताई गई बिजली की अदायगियाँ भी आवाम की जेब से निकाली जा रही हैं। ज़रूरत से ज़ायद बिजली पैदा करने के मुआहिदे दर्द-ए-सर बन गए हैं। पॉलिसी सासों ने आवाम का अतकता मश बना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपरा ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा खपत 2024 के मौसम गर्मा में 30,150 मेगावाट रिकॉर्ड की गई, जबकि इस वक्त पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी इस्तेदाद 46,600 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। यूँ पावर प्लांट्स की सलाहियत मुल्क की ज़रूरत से तकरीबन 15,000 मेगावाट ज्यादा है और आने वाले चंद बरसों तक भी मुल्क में पावर प्लांट्स की बिजली की खपत 46,000 मेगावाट तक पहुँचने का इम्कान नहीं है। माहिरीन का कहना है कि जायद इस्तेदाद के बावजूद कैपेसिटी पेमेंट हर सूरत अदा करना पड़ती है, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। कैपेसिटी पेमेंट कीमत में तकरीबन 30% अदायगियाँ ऐसी बिजली की भी की जा रही हैं जो कभी इस्तेमाल में नहीं आती। ज़राए का दावा है कि मुआहिदे करते वक्त बिजली की असल तलब और रसद का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया गया, जिसके बायस आज निजाम पर इजाफी बोझ है। माहिरीन के मुताबिक तवानाई पॉलिसी पर नजरसानी न की गई तो इजाफी मुआहिदों का माली बोझ सार्फिन को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुल्क में सोलर पैनल्स की तनसीब के बाद नेशनल ग्रिड से बिजली की तलब मजीद कम हो रही है, जिससे कैपेसिटी पेमेंट का मसला मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सोलर सिस्टम्स की इंपोर्ट पर अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद लिथियम बैटरीज की इंपोर्ट पर ज़र मुबादला खर्च होने का खदशा है। लेस्को का यूनिट महंगा जबकि लिथियम बैटरी का यूनिट सस्ता पड़ेगा। लेस्को का यूनिट 55 से 60 रुपये, जबकि सोलर वालों के लिथियम बैटरी से यूनिट 25 से 30 रुपये तक चार्ज होगा। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग की नई पॉलिसी। बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत की नेट बिलिंग की नई पॉलिसी को बैटरीज की प्रमोशन करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं, पहले सोलर को फ़रोग़ दिया गया और 7 अरब डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला इन सिस्टम्स की इम्पोर्ट पर लगाया गया। अब बगैर मुशावरत नई पॉलिसी दे दी गई है। आवाम से किया मुआहिदा ख़त्म किया गया। इससे हुकूमत की साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले सोलर पैनल को इम्पोर्ट करने के लिए सब कुछ किया गया, अब ये जो लिथियम बैटरी को इंपोर्ट करवाने के लिए, क्योंकि 1.25 लाख की जो लिथियम बैटरी है वो 50 यूनिट बनाती है, तो इसकी भी जो कॉस्ट होगी तकरीबन जो यानी लिथियम बैटरी यूज करने के बाद भी यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो 25 से 30 रुपये बनती है। हमारे सार्फिन पे जो एक बोझ पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है इस हवाले से, जो ये नई पॉलिसी के हवाले से सोलर पैनल की जो नई पॉलिसी हुकूमत देने जा रही है, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी।
اس کا ایک حکومت پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ سابق چیئرمین پیاف محمد علی میاں نے نیٹ بلنگ کی نئی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا آئی پی پیز کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، لیتھیم بیٹریز کی پروموشن سازش بھی ہو سکتی ہے، حکومت فوری طور پر اس اہم ترین مسئلے کو حل کرے۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آمنہ رندھاوا نے کہا کہ سولر پالیسی سے کاروباری خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوں گی جو بوتیک، سیلونز، سکولز اور گھریلو یا کاٹیج انڈسٹری سے منسلک ہیں۔ انہوں نے پہلے بھاری سرمایہ لگا کر سولر سسٹمز لگائے، اب ایک بار پھر بیٹریز کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ ڈسکریج ہے جو کلین انرجی کا ایک کنسیپٹ ہے اور دنیا میں جو چل رہا ہے، یہ اس سے بہت نقصان ہوگا۔ انفارچونیٹلی یہ جو حکومت کا یہ اقدام ہے اور اس پہ نیٹ میٹرنگ پہ اور جو ابھی انہوں نے پالیسیز کو چینج کیا ہے وہ کافی امپیکٹ فل ہے۔ سولر کی نئی نیٹ بلنگ پالیسی سے مارکیٹ میں بیٹریز کی قیمتوں میں بھی تیزی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ